So students, today we are going to start with the quantum numbers. Quantum numbers. So what is quantum number? Quantum mechanical model of atom. We are going to study quantum mechanical model of atom. See, we know that electron has wave nature also. So this was defined by in quantum number. We are simply going to study about the scientist named Schrödinger. Okay, and we are going to study about the Schrödinger wave equation. What we are going to study? Schrödinger wave equation. What does Schrödinger wave equation tells? It tells us probability of finding the waves. Probability of finding the waves, or the probability of finding the electrons. Okay, so the equation which Schrödinger gave was d by dx square plus d square by dy square plus d square by dz square plus 8 pi square m square E minus V, that is equal to 0 divided by H. H is Planck constant, E is energy, potential and kinetic energy, E minus V. See, I have not written a one common term which is in all the abbreviation, that is psi. See, now what we say to this Schrödinger wave equation, we will read it as d by dx squared psi plus d squared psi by dy square, d squared psi by dz square plus 8 pi square m square by h E minus V psi is equal to 0. And we are able to see that here are three variable terms. What are these? These are variable terms, that is x, y and z. You are able to see x, y and z, three variable terms. This will give us three quantum number. So we can simply say that Schrödinger wave equation, from this wave equation we are going to get three quantum numbers, and totally we are going to study about 4 quantum number. So 3 quantum number बेटा तो हमको Schrödinger wave equation से मिल गए, बट एक जो 4th नंबर का Schrödinger का wave equation का जो पार्ट नहीं है 4th क्वांटम नंबर, वो है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर. स्पिन क्वांटम नंबर क्या है? क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज जो आपके इलेक्ट्रॉन स्पिन करते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं. 3 तो देखिए बेटा हमें एक्स वाई जेड Schrödinger की वेव इक्वेशन से मिल गए, एंड 4th स्पिन के बारे में. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द क्वांटम नंबर्स. ओके, सी व्हाट इज क्वांटम नंबर. If we say that 4 quantum numbers, symbol is N, L, M and S. N represent principal quantum number, L represent azimuthal quantum number, M represent magnetic quantum number, and your S represent spin quantum number. So these are the 4 quantum number which we are going to study in detail about these. N is for principal, L is for azimuthal, M is for magnetic, and S is for spin quantum number. And what does these do? These simply tell you the location of electrons. Okay, these simply tell you the लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. सपोज मैंने बेटा पूछा कि आप कहाँ पे रहते हैं, तो आप बता सकते हैं ना कि इंडिया में कहाँ? उत्तर प्रदेश में कहाँ? तेलियरगंज में. और तेलियरगंज में कहाँ? जो आपका बेसिक जिस लोकेशन पे हैं आप एड्रेस के साथ, तेलियरगंज ही बोल सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि प्रयागराज में. समझ रहे? तो इसी तरीके जब हमें इलेक्ट्रॉन की लोकेशन पता लगाना होता है तो एन, एल और एम और एस की हेल्प से हम निकाल सकते हैं. अब देखते हैं कैसे होता है बेटा. ये सबसे पहले हमें एक चीज़ और जानना है
कि अब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसको हम ऑर्बिट्स नहीं ऑर्बिटल के फॉर्म में पढ़ेंगे। ऑर्बिटल्स बेसिकली क्या होते हैं? ये आपके 3D स्पेस को रिप्रेजेंट करते हैं इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ऑर्बिटल जो होते हैं, अब देखिए 3D में हम जा रहे हैं, पहले हम क्या पढ़ते थे? 2D पढ़ते थे, ऑर्बिट्स। अब 3D फॉर्म में हम आ गए तो ऑर्बिटल्स इनको बोलेंगे, ऑर्बिट नहीं बोलेंगे। ये 3D स्पेस होता है जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होता है, सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब 3D में देखिए क्या बेनिफिट होता है, एक्स वाई एंड जेड 3 एक्सेस आ जाता है। सपोज इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन कहीं है तो आपका होगा एक्स का 2, वाई का 3 एंड जेड का 4, मतलब 3 कोऑर्डिनेट एक्सेस के हेल्प से हम लोग पता लगा सकते हैं। तो ये ज़्यादा एक्यूरेट पोजीशन बताता है, ठीक है। और यहाँ से हम क्या क्या पता लगा सकते हैं, मतलब क्या क्या चीज़ हम और फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से हमें पता लगता है डिफरेंट शेप, और क्या फाइंड कर सकते हैं? डिफरेंट साइज़, शेप हो गया, डिफरेंट साइज़ हो गया, एंड डिफरेंट ओरिएंटेशन। ये 3 चीज़ भी हम इसी से पता लगा। फर्स्ट पॉइंट दैट इज़, हम सबसे पहले क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम बोलें तो n इज़ इक्वल टू 1, n इज़ इक्वल टू 2, n इज़ इक्वल टू 3 एंड n इज़ इक्वल टू इनफाइनाइट। इनकी बात करें तो ये आपका k सेल है, ये l है, ये m है, ठीक है। मतलब n1 को हम k सेल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको l से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, k, l एंड m सेल। तो ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे आपका कोई भी एनी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, वैल्यू n की, एनी पॉजिटिव इंटीजर, इसको याद रखिएगा, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकती है n की वैल्यू। बेसिकली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा बताता क्या है? सबसे मेन जो जीस्ट है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता क्या है? साइज ऑफ ऑर्बिटल्स को ये बताता है, ऑर्बिटल की साइज़ कितनी है। साइज से क्या है, जैसे कि सपोज ये हो गया आपका k, ये l एंड ये m, दिख रहा है k, l एंड m। अब आप देख रहे हो ये वाले की जो l वाले की साइज़ है k, l एंड m, m की साइज़ क्या है? सबसे बड़ी है, मतलब m का ऑर्बिटल सबसे बड़ा होगा। हम इसको बता सकते हैं कि ये देखिए ऑर्बिटल की साइज़ k, l एंड m, m की सबसे बड़ी, देन l की, देन k की। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बस आपको यही रिप्रेजेंट करता है, साइज़ ऑफ द ऑर्बिटल। इस जो ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी साइज़ क्या है, वो किस में है, k सेल में है, l में है या m में है। क्लियर है बेटा? देखिए अब नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारा L जो था, जिसको हम कहते हैं एज़ोमुथल, या फिर एक और नाम इसका होता है, 2 नाम से हम एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, एज़ोमुथल या फिर एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, ठीक है। रिप्रेजेंट किससे करते हैं? L, जो सिंबल है इसका एज़ोमुथल का या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय L। ये क्या बताता है? ये बताता है आपका, वापस आपका साइज़ बता रहा था, ये बताता है आपका शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स। सबसे मेन चीज़ है बेटा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखने के लिए। प्रिंसिपल पढ़ा था तो वहाँ साइज़ था, यहाँ हम एज़ोमुथल पढ़ रहे हैं तो शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स के बारे में ये बताता है। शेप ऑफ द ऑर्बिटल देखिए, L की वैल्यू हम ले लेते हैं, क्या क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है या 3 हो सकती है। L जो है ये किसी सबसेल के अंदर होगा। अगर हम बोल दें जो हमारा n था वो सेल था, तो सेल के बाद क्या आता है? सबसेल आता है। L को हम कह सकते हैं S, 1 को कह सकते हैं P, 2 को कह सकते हैं D एंड 3 को कह सकते हैं F। मतलब आप समझ रहे हैं, सबसेल जो है वो क्या है? S, P, D, F। मतलब 1 रिप्रेजेंट हो रहा है S से, 0 रिप्रेजेंट हो रहा है S से, 1 आपका P से, 2 आपका D से एंड 3 आपका F से। तो S, P, D, F यहाँ से हमें मिल गया। अब इनका शेप, क्योंकि शेप ऑफ द ऑर्बिटल को ये बताता है तो शेप क्या होता है, और यहाँ पे उनका डायग्राम किस तरह होगा, ठीक है। तो अगर हम S की बात करें, S का जो शेप होगा वो होगा स्फेरिकल। स्फेरिकल मीन्स कुछ इस टाइप का शेप मिलेगा। अगर P की बात करें सबसेल में, तो इनका जो शेप होगा वो होगा डंबल शेप। डंबल शेप आप जानते हैं, डंबल कुछ इस तरीके से होते हैं, एक्सरसाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। D का अगर होगा बेटा तो वो होगा आपका डबल
डंबल शेप। डबल डंबल शेप मीन्स एक बार एक्स के ओरिएंटेशन में होगा, सेकंड आपका वाई के ओरिएंटेशन पे होगा, एक्स एंड वाई, डबल डंबल शेप का हो गया। देन एफ में अगर कोई होगा आपका इलेक्ट्रॉन, तो उसका अगर हम शेप देखना चाहें तो वो कैसा होगा, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड शेप होता है। यहाँ सिंपली हम लिख देते हैं कॉम्प्लिकेटेड शेप, या फिर 8 फोल्ड स्ट्रक्चर का शेप होगा। कितने फोल्ड? 8 फोल्ड स्ट्रक्चर का शेप होगा। क्लियर इतना आपको? अब इसके बाद हम लोग एक चीज़ और समझते हैं जो इम्पोर्टेंट है। देखिए, हमने इसके पहले सबसेल की बात करी, अब हम कह रहे हैं कि n की वैल्यू, l की वैल्यू जो रेंज करती है वो कहाँ से कहाँ तक करती है? l इज़ लेस देन इक्वल टू n-1 एंड l इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस चीज़ को याद रखिए। यहाँ से हम l की वैल्यू निकाल लेंगे सभी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए। देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ पे l है और यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं। सपोज़ 1 है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू, तो s की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पे रखेंगे 1-1, केवल 0 आ सकती है। 0 हमने क्या बताया था? s को रिप्रेजेंट करता है। 1 है प्रिंसिपल और s है, मतलब 1s आ गया। अगर 2 आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यहाँ पे 2 रखेंगे, 2-1, 0 से लेके 1 तक, 0 एंड 1, दो वैल्यूज़ आ गई। 0 रिप्रेजेंट करता है s को, 1 रिप्रेजेंट करता है p को। पहले मैंने बताया था, देखिए 0 1 2 3। 0 किसके लिए था? s, 1 आपका p, 2 d, 3 f। ठीक है, तो इसी से मैं कर रहा हूँ। अब क्योंकि ये 2 है और 0 है s, मतलब 2s एंड 2p, 2 मिल गया। 3 वैल्यू जब रखा हमने यहाँ पे 3-1 2, 0 से लेकर 2 के बीच क्या क्या वैल्यूज़ आएंगे? 0 1 एंड 2, 3 वैल्यू आ गई। 0 इज़ फॉर s, 1 इज़ फॉर p एंड 2 इज़ फॉर d। दिख रहा है ना, s p d 3 आएंगे। थर्ड की बात कर रहे हैं तो 3s 3p एंड 3d। देखिए 3 हमें वैल्यूज़ मिल गई। अगर फोर्थ n की वैल्यू 4 हो जाती तो क्या होगा? 4-1 रखेंगे, 3 हो जाए, मतलब 0 1 2 एंड 3, s p d एंड f। फोर्थ का है मतलब 4s 4p 4d एंड 4f। लिखा टोटल। तो यहाँ से देखिए आपको s p d f मिल रहा है और उनकी वैल्यूज़ भी मिल रही है। मतलब 1 मतलब क्या है? फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट एंड फोर्थ ऑर्बिट, बताया था ना। अब आपको यहाँ से क्लियर हो रहा होगा, देखिए कितना क्लियरली ये समझ में आ रहा है। एक और जो फॉर्मूला यहाँ से कभी कभी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछ लेता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने को, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा h/2 अंडर रूट, ये आपका l है एंड ब्रैकेट में l+1। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये अज़ीमुथल क्वांटम नंबर था, हम लोग इसको समझ गए। प्लीज़ आप लोग वीडियो ध्यान से देखिएगा और नोट्स अपने प्रिपेयर करते चलिए। देन इसके बाद अब हमारा थर्ड आएगा। देखिए प्रिंसिपल हो गया, अज़ीमुथल हो गया, अब क्या आएगा? अब आएगा मेरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं m से। ये क्या बताता है? ये आपका बताता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। ये बताएगा ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में। वैल्यू देखिए हम कैसे रखेंगे, -l। ठीक है, -l इज़, मैं लिख ले रहा हूँ फिर डिफाइन करता हूँ। l है ये, देखिए ये कहाँ से कहाँ तक है? l की जो वैल्यू है m, सपोज ये m है ना, m इज़ लेस देन इक्वल टू l एंड m इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -l। मतलब -l से लेके +l के बीच तक ये वैल्यू लाई करेगी। और यहाँ पे ये जो m है ये कोई भी इंटीजर हो सकता है 0 को लेके। 0 को लेके मतलब l की वैल्यू आपकी क्या क्या आ सकती है? 0 आ सकती है, 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, 3 आ सकती है। 0s होता है, 1p होता है, 2d होता है, 3 आपका f होता है, मतलब spdf आपका आ गया। अब क्योंकि m की वैल्यू हमें निकालनी थी, हम 1 रख देते हैं। 0 रखा यहाँ पे तो लिमिट 0 ही केवल आई, तो ओनली 0 मिल गया हमें। 1 रखा यहाँ पे तो -1 से लेके +1 के बीच आएगी। ठीक है, -1 से लेके +1 के बीच आएगी। पहला 0 आ गया, दूसरा -1 0 +1
तीसरा जब 2 रखेंगे तो बेटा लिमिट देखिए -2 से +2, मतलब -2 -1 0 1 2। थर्ड हम रखेंगे 3, जब वैल्यू रखेंगे एल की तो -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3। अब देख रहे होंगे किस तरीके से ये वैल्यूज़ हमें मिली। बस ये वैल्यू याद रखिए 0, यहाँ पे देखिए केवल एक ऑर्बिट, यहाँ पे आप देख सकते हैं पी के लिए 3 ऑर्बिट, डी ब्लॉक के लिए हमको पता है टोटल 5 ऑर्बिट्स होती हैं, एंड इसके बाद एफ़ के लिए आपकी टोटल कितनी होती हैं 7 1 2 3 4 5 6 एंड 7। दिख रहा है? तो यहाँ से देखिए इन सब वैल्यूज़ से हमको ये मिल गई, ये एस है, ये पी है, ये डी है एंड ये एफ़ है, एस पी डी एफ़। और क्लियरली हम समझते हैं इसको। अब देखिए एन की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी, जो आपकी एल की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक थी, एल इज़ लेस देन इक्वल टू n - 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, n हो गया, l हो गया, m की वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं, m इज़ प्लस l से लेके -l तक, मतलब m इज़ लेस देन इक्वल टू प्लस l एंड m इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -l। ये वैल्यूज़ है जो अप्लाई करेंगे। अब हम n की जो वैल्यूज़ है वो रखते हैं, 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं और 3 ले लेते हैं, केवल 3 वैल्यूज़ को चेक कर रहे हैं। 1 रखेंगे बेटा यहाँ पे तो आपको दिख रहा है क्या आएगा, 0 केवल आएगा। 2 रखते हैं बेटा यहाँ पे तो क्या आएगी वैल्यूज़ आपकी, 0 एंड 1। 3 रखेंगे n - 1 तो 0 से लेकर 2 तक आएगा, मतलब 0 1 एंड 2। मैंने आपको बताया था बेटा 0 s को रिप्रेजेंट करता है, तो जहाँ जहाँ 0 वहाँ s लिख सकते हैं। 1 क्या रिप्रेजेंट करता है, s के बाद p, 2 क्या रिप्रेजेंट करता है, d ब्लॉक को। लिख लिया मैंने। यहाँ पे भी बेटा अब l की वैल्यू आप m है ना, m की वैल्यू 0 से लेके और ±l तक लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। 0 को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज़ 1s। अब 0 एंड 1 देखिए, 0 है ना, 0 को रिप्रेजेंट करेंगे तो अब क्या आएगा, क्योंकि सेकंड के लिए है तो 2s। और 1 को जब रिप्रेजेंट करेंगे तो 1 p ब्लॉक है, p ब्लॉक में टोटल कितने 3 ऑर्बिट्स होते हैं, 3 मतलब 6। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स आपके फिल हो सकते हैं, तो हम इसको लिखते हैं 2p। एंड थर्ड पे आइए, अब यहाँ पे 0 हो सकता है, 1 है एंड 2। 0 के लिए फिर s होगा तो यहाँ पे 3s आएगा। 1 के लिए फिर हम 3 ब्लॉक्स बनाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3p एंड 2 के लिए अब 5 d ब्लॉक है ना, 1 2 3 4 5 टोटल 5 आ सकते हैं, दैट इज़ 3d। अब देखिए इनको हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर और इजी हो रहा है हमारे लिए समझने में। ठीक है, तो आई होप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मुझे और बतानी है आपको, जैसे कि नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स इन अ सेल अगर हम कैलकुलेट करें तो वो क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सेल। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सेल का जो होता है बेटा n² होता है। ये पहला आ गया, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। सेकंड, अगर हम बोलें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सब सेल, किसी सब सेल के अंदर कितनी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगी, तो वो होती हैं 2l + 1, 2l + 1, 2l + 1। ठीक है, तो ये भी इसकी का कुछ पार्ट था इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रखिएगा। अब इसके बाद हम मूव करते हैं अपने 4th क्वांटम नंबर की तरफ, दैट इज़ वो क्या है, हमने प्रिंसिपल पढ़ लिया, एज़ोमेथल पढ़ लिया, मैग्नेटिक पढ़ लिया। अब स्पिन क्वांटम नंबर, जो कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का पार्ट नहीं था, बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम s से। ये जो है हमारा बताता है इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, क्योंकि वो रोटेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सेस। वो पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रोटेट करते हैं खुद के अपने ही एक्सेस पे। किस तरीके रोटेट कर सकते हैं, या तो वो क्लॉकवाइज कर सकते हैं या तो वो एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। अगर क्लॉकवाइज करते हैं तो +½ आता है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज करते हैं तो -½ आता है। ज़रूरी नहीं है क्लॉकवाइज को +½ से दिखाएं, -½ भी दिखा सकते हैं और एंटी क्लॉक को +½ भी दिखा सकते हैं। मतलब एक की वैल्यू अगर आपको पता है प्लस, तो जाहिर सी बात है दूसरा उसके अकॉर्डिंग अपने आप ही दूसरी वैल्यू होगा, दैट इज़ -½ ठीक है।
तो थैंक यू स्टूडेंट, आई होप आप सबको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा।